Good evening, everyone. Welcome to today's current affairs session brought to you by Rajendra Law Academy. So let's begin today's session and let's have a look at the important current events. First important news is Prime Minister Modi participated in the 17th BRICS Summit in Brazil. So let's have a look what are the important outcomes in this summit and what is the future role that BRICS will play in the global governance. So let's have a look. 17th BRICS Summit held in Rio de Janeiro, Brazil. Prime Minister Narendra Modi participated in it, and the theme, please note down the theme of 17th Summit. Theme is strengthening global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance. So अभी जो developing countries हैं, उनको basically उनकी cooperation के साथ एक inclusive and sustainable governance system जो है, उसको promote करना है. I will explain this. Please note down the theme. Strengthening global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance. The leaders held productive discussions on various issues on the BRICS agenda, including कौन-कौन से एजेंडास के ऊपर डिस्कशन की है? Number one, reform of global governance. Then enhancing the voice of global South, peace and security, strengthening multilateralism, development issues and artificial intelligence. So these were the main agenda which were discussed by the leaders. Reform of global governance, enhancing the voice of global South, so means they are giving importance to the developing countries, and strengthening multilateralism. I will explain these topics one by one so that you can understand their significance, ki why these leaders are discussing these topics, these issues. PM Modi addressed the inaugural session of कौन सा सेशन हुआ इस समिट के अंदर इनॉग्रल सेशन फर्स्ट सेशन कौन सा रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीस एंड सिक्योरिटी ऑल्सो मोदी जी एड्रेस्ड strengthening multilateralism, economic financial affairs and artificial intelligence. Now let's understand what is multilateralism. तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म हमने पढ़ा कि इन्होंने बोला मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है. मल्टीलेटरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंट्रीज वर्क टुगेदर. तो देखो यूनिलेटरलिज्म होता है जहां पर एक ही कंट्री जो है उसकी हेजेमनी है, ठीक है. तो मल्टीलेटरलिज्म में क्या होगा, मल्टीपल कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन इश्यूज. कौन सी इश्यूज के ऊपर, दैट इफेक्ट ऑल ऑफ देम, सच एज कौन सी इश्यूज, ग्लोबल पीस, देन क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी. It usually involves international institutions like United Nations, World Trade Organization, BRICS. The idea is about multilateralism is about shared decision making instead of one or two powerful countries dominating. तो उसको बोलते हैं strengthening multilateralism. Countries cooperating through the UN to address. तुम जैसे कि अगर हम देखेंगे COP30 अगर आप देखते हो अब होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है COP30? ब्राजील में होने वाली है COP30, ठीक है. COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए. तो वो एक एग्जांपल है कौन सा, मल्टीलेटरलिज्म का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक ग्लोबल इशू है. क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू एंड देयरफॉर ऑल द कंट्रीज शुड पार्टिसिपेट इन इट एंड टेक अ टुगेदर टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. सो और देखो पैंडेमिक हुआ था, वहां पर भी मल्टीलेटरलिज्म हमें देखने को मिला था. Now, why multilateralism is important? Why strengthening multilateralism? It means making international cooperation more effective, fair and inclusive. तो जैसे अभी तक तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, यही मेन इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते थे उसके ऊपर फैसला लेते थे. बट अब जो है सिनेरियो चेंज है, अब काफी सारी कंट्रीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर. तो उनकी भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. इट एंश्योर्स व्हाट, अगर आप सबको साथ लेके चलोगे तो इट एंश्योर्स व्हाट, शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी इन रिजॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स and giving equal voice and representation to smaller nations, making global organizations like IMF, World Bank more democratic and transparent because each country will participate in it. And Modi and BRICS leaders aim to strengthen multilateralism so that the global South, that is the developing nations, can influence the global policies more. Reform of global governance. Now, second agenda that they discussed was about the reformation in the global governance. So first we have seen that strengthening multilateralism. Second agenda was reform of the global governance. Global governance refers to how international affairs are managed.
through rules, institution, and partnerships. But current global governance is dominated by a few powerful countries, especially post World War II powers like US and its allies. So why the countries are emphasizing on reform of the global governance? Because changing the structure of यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया कितनी देर से बात कर रहा है कि यूएनएससी जो है जिसके अंदर परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, तो आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर कंट्रीज जो इसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और रिफॉर्म्स करके जो 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 जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ मेजर पावर इन द साउथ एशिया, तो इंडिया का भी जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो चेंज इन द ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसके अंदर ऑल द कंट्रीज शुड हैव अ से। बेसिकली जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो डोमिनेट करती हैं, जो हेजिमनी रखती हैं अपने एरिया के अंदर। रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मींस चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, मेकिंग देम मोर इंक्लूसिव, मतलब सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। रिफ्लेक्टिव ऑफ टुडेज रियलिटीज, बोलो आज की रियलिटी और पहले की रियलिटी दोनों डिफरेंट थी। especially the rise of the countries like India, Brazil, and South Africa, giving developing countries more say in the decision making. Now, example, India has a long demanded a permanent seat in the United Nations Security Council as a part of the global governance reforms. So, India is for long asking for a reform in the United Nations Security Council. Now, key leaders and declarations and at BRICS summit. तो नोटेबल कौन एब्सेंट थे, कौन से लीडर एब्सेंट रहे इस समिट के अंदर? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग and his Russian counterpart Vladimir Putin skipped the summit. Iranian President Masoud Pezeshkian and Egypt's Abdel Fattah al-Sisi did not attend the summit. तो ये एब्सेंट रहे। तो ये तो हाँ जी, देखो आ सकते हैं कंट्रीज के नेम, लीडर्स जो नोटेबल एब्सेंस, जैसे ये एब्सेंट थे मेन आप देख लीजिए, चाइना के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट, इनका याद रख लीजिए। ईरान वाले तो आपको याद ही रहेंगे। अब इस समिट के अंदर कौन सी डिक्लेरेशन साइन हुई है? रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। द ब्रिक्स लीडर्स अनवील द रियो डी जेनेरियो के अंदर ये समिट हुआ है, तो ऑब्वियसली कौन सी डिक्लेरेशन होगी? रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन दैट फीचर द ग्रुपिंग पोजीशन ऑन। तो उस डिक्लेरेशन के अंदर जो ग्लोबल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर इन कंट्रीज की क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है, वो इसके अंदर डिस्कस की गई है। आप देखिए कौन कौन से इश्यूज जो हैं इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ये declaration, it was about global challenges about including terrorism, the situation in the West Asia, trade and tariff, reform of global institutions such as United Nations Security Council, Bretton Woods institutions। तो इनके अंदर रिफॉर्म्स करने की बात इन्होंने करी इन इश्यूज के ऊपर। एंड ब्रेटन वुड वैसे इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी इनको बोलते हैं क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके, तभी इनको बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे डिवास्टेशन हो गई थी, कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है काफी इम्पैक्ट हुआ था उनके ऊपर, तो एक तरह का इकोनॉमीज को रीग्रो करना था दोबारा से, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जो कंट्रीज को लोन देके हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमीज को दोबारा क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इसलिए इनको कौन से बोलते हैं? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। नाउ इसमें इस डिक्लेरेशन के अंदर दे हैव कंडेम्ड द पहलगाम टेरर अटैक। आपको याद होगा एससीओ जो मीट हुई जहां पर हमारे कौन गए थे, डिफेंस मिनिस्टर या राजनाथ सिंह, तो उन्होंने मना कर दिया था उसका जो उसकी स्टेटमेंट थी, फाइनल स्टेटमेंट उसके ऊपर, बिकॉज एससीओ कंट्रीज रिफ्यूज टू कंडेम द पहलगाम टेरर अटैक, बट ब्रिक्स कंट्रीज दे हैव कंडेम्ड द पहलगाम टेरर अटैक एंड इकोड इंडियाज पोजीशन टू pursue a zero tolerance towards terrorism and shunning double standards in countering the menace। menace मतलब होता है प्रॉब्लम, तो टेररिज्म की प्रॉब्लम को डबल स्टैंडर्ड जो कंट्रीज बात तो करती हैं टेररिज्म एलिमिनेट करने की, बट दे सपोर्ट द टेररिस्ट, दे फंड द टेररिस्ट। नाउ एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, इंडोनेशिया फॉर्मली ज्वाइंस एज अ फुल ब्रिक्स मेंबर एंड 11 न्यू ब्रिक्स पार्टनर्स कंट्रीज आर वेलकम। तो 11 न्यू, अच्छा ये मेंबर नहीं है, ये कौन से बने हैं? ये पार्टनर कंट्रीज हैं। तो इस समिट के अंदर 11 न्यू पार्टनर कंट्रीज जैसे बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, इनको नहीं याद कर सकते तो छोड़ दो। पार्टनर्स कंट्री को तो हम याद नहीं कर सकते, 11 है, बट जो मेंबर कंट्रीज हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे इंडोनेशिया है वो फुल मेंबर बने,
किसने? इंडोनेशिया तो लेटेस्ट कंट्री है, 2025, 2025, 2010 में तो साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी। व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी करेक्ट. Now, understanding multipolar world order. So there are different types of world orders. Unipolar means one superpower dominates, like US after the Cold War. Bipolar means two superpowers dominate, like US versus USSR. Multipolar means many countries share global power economically, politically and militarily. तो ये जो ये ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन करें, इट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. What is a multipolar world order? A multipolar world order means that the power is distributed among multiple countries or blocks rather than being dominated by just one or two superpowers. Why it matters? Multipolar world order क्यों जरूरी है? बताइए. It promotes balance of power. No single country can dictate the terms to the world. Then it encourages diversity in the leadership and decision making. Strengthen the voice of the global south. तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम दे रहे हैं रिकॉग्निशन. इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अब काफी सारी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है. एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलैरिटी टुडे, यूएस स्टिल होल्ड सिग्निफिकेंट पावर बट चाइना हैज इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्स. सिमिलरली कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, रशिया, ये सब मल्टीपोलर जो हैं. की डेक्लेरेशन एट ब्रिक्स समिट. अच्छा, ये हमने डेक्लेरेशन देख ली, रियो डी जेनेरियो डेक्लेरेशन. बट मेन डेक्लेरेशंस क्या क्या किए हैं इन्होंने, देख लीजिए. तीन है मेन डेक्लेरेशन जो इस समिट के अंदर हुई हैं. वो है ब्रिक्स लीडर फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. तो इसका मतलब भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. अच्छा, लिखवाने को तो सिर्फ मैं आपको ये तीन चीजें लिखवा देता, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाता कि सर इसका क्या मतलब है. बट मैंने इसको एक्सप्लेन किया. ब्रिक्स लीडर फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस मींस दिस इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बाय. तो इन्होंने जितने भी ब्रिक्स नेशंस हैं, इन्होंने ये फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर साइन करी है. मींस ब्रिक्स कंट्रीज दे पुश फॉर द फेयर एंड इंक्रीज फंडिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज आ रहा है भाई, उसको फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए. हमें सोलर पावर की तरफ जाना पड़ेगा, ईवी की तरफ जाना पड़ेगा. बट फंडिंग कहाँ है? डेवलपिंग कंट्रीज ने, दे आर नॉट हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कार्बन एमिशंस. कार्बन एमिशंस को ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर किसने रिलीज किया? डेवलप्ड कंट्रीज ने. तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसके ऊपर होनी चाहिए? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर. तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज पर हैं, दे आर डेवलपिंग, वो तो डेवलप हो चुकी हैं, उनका तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, वहां पर पॉवर्टी से सारे लोग बाहर हैं. यहाँ तो हमने ग्रो करना है, ग्रो करना है, तो फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, तो कार्बन एमिशंस होंगी. बट हमें ग्रीन की तरफ शिफ्ट होना है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, और इतनी लार्ज स्केल फंडिंग हमारे पास नहीं है. तो इन्होंने क्या बोला कि टू फाइट क्लाइमेट चेंज स्पेशली फॉर डेवलपिंग नेशन, दे वांट रिच कंट्रीज हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल एमिशंस टू ऑनर देयर क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स. कि उन्होंने जो वादा किया था डेवलप्ड कंट्रीज ने, कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देंगे? फंडिंग देंगे, जो कि आज तक पूरी नहीं की उन्होंने. तो वो कह रहे हैं अपनी कमिटमेंट को क्या करें? वो ऑनर करें. टू हेल्प पुअर कंट्रीज अडेप्ट एंड रिड्यूस एमिशंस. पर्पस टू एंश्योर क्लाइमेट जस्टिस. तो ये क्लाइमेट जस्टिस है, क्योंकि एमिशंस डेवलप कंट्रीज ने करी हैं, और इम्पैक्ट तो सब कंट्रीज के ऊपर आ रहा है. तो इट इंश्योर्स क्लाइमेट जस्टिस एंड अ जस्ट ट्रांजिशन टू जस्ट, नॉट सडन ट्रांजिशन, अ जस्ट ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी विदाउट हार्मिंग द ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज. कि उनको ग्रो भी करना है साथ साथ. देन नहीं, इस बार उन्होंने ये उन्होंने रेकमेंड किया था कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाए, बट नहीं, उन्होंने करेंसी के ऊपर एग्री नहीं किया अभी. वो भी मैंने कवर किया. देन सेकंड इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन इज अबाउट स्टेटमेंट ऑन द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और इसको गवर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने बहुत जरूरी है, बिकॉज एआई का मिसयूज बहुत हो सकता है. तो अब एक कंट्री जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना दे, बाकी कंट्रीज के जो कंसर्न्स है वो आप एड्रेस ना करो, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है? ग्लोबल गवर्नेंस. क्या बोला उन्होंने? सब कंट्रीज का जो है आप जो है ओपिनियन लेकर एक ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाइए. तो इनिशिएटिव लॉन्च ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बाद ये सेकंड वाला है. एंड इसके ऊपर यहाँ पर देखिए आप, स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट मींस ब्रिक्स कंट्रीज आर आस्किंग फॉर इंक्लूसिव एथिकल रिस्पांसिबल रूल्स फॉर हाउ एआई इज डेवलप्ड एंड यूज्ड. दे बिलीव ग्लोबल एआई गवर्नेंस शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ few powerful countries or the tech giants. Then third is the most important. Third is a declaration about the launch of BRICS partnership for the elimination of socially determined diseases.
ये डिजीज कौन सी होती है? सोशली डिटर्मिन्ड, socially determined diseases. So a collaborative initiative to address diseases affected by social factors like poverty and inequality. इनको डील करना है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये एआई का मिसयूज प्रिवेंट करना, ये हमें पता चल गया। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेटिंग सोशली डिटर्मिन्ड डिजीजेस। व्हाट आर सोशली डिटर्मिन्ड डिजीजेस? दीज आर डिजीजेस कॉज्ड और वर्सन्ड बाय सोशल फैक्टर्स लाइक, तो अब देखो ऐसी डिजीजेस जो जिसका कारण गरीबी ही है, पॉवर्टी है। जैसे अब जो पॉवर्टी होएगी तो वो अनहाइजीनिक सिचुएशन में जो लोग रहेंगे, अच्छी जगह पे नहीं रहेंगे, तो उससे बीमारियां तो फैलेंगी। ये सोशली डिटर्मिन्ड डिजीज होती है जिनका मेन कॉज या फिर वर्सनिंग फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? पॉवर्टी, लैक ऑफ क्लीन वाटर, पुअर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो इनको कंट्रोल करना है। सोशली डिटर्मिनेंट्स जैसे अनसेफ हाउसिंग, लो एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो एग्जाम्पल, इनसे कौन सी बीमारियां फैलती हैं? टीबी सबसे ज्यादा यहाँ फैल सकता है। और आप देखेंगे भी तो पुअर इनकम ग्रुप जो लोग बिलोंग करते हैं उनमें टीबी ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि अनहाइजीनिक सिचुएशन या कंडीशंस में रहना, जिससे टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैलन्यूट्रिशन, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन पुअर कम्युनिटीज, तो इनको डील करने के लिए भी उन्होंने एग्री किया। द डिजीजेस कॉज्ड बाय दीज फैक्टर्स, सोशली डिटर्मिन्ड डिजीजेस। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट भी इन्होंने करी है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो इन सब कंट्रीज ने बोला कि हमें किसको सपोर्ट करना है? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो था COP21, COP21 एंड पेरिस एग्रीमेंट में द मेन टारगेट वाज टू लिमिट द टेम्परेचर अप टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट था, एवरेज अर्थ का टेम्परेचर जो था, एवरेज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, तो अफ्रीका भी है, आइसलैंड भी है, अंटार्कटिका भी है, आर्टिक भी है, सबका पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर दिन और रात का मिलाकर, ऐसे मत बोलना कि सुबह ही 45 डिग्री हो जाता है। तो पूरी अर्थ का दिन और रात सारा एवरेज टेम्परेचर मिलाकर कितना था? 13.5 डिग्री। ठीक है, इतना था। तो ये कह रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक बस इसको कंट्रोल करना है, तो मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको कहाँ तक लिमिट करके रखें? 1.5 डिग्री। टारगेट ये है, बट हम ट्राई करेंगे कि इसको यहाँ तक करें। बट लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, दे ऑलरेडी हैव शोन दैट कि ऑलरेडी 1.3 डिग्री तो बढ़ ही चुका है, ऑलरेडी 1.3 डिग्री तो बढ़ ही चुका है। और उसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो, हिमाचल के अंदर भी फिर कितनी लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स आए, कितना कुछ। और किसी ना किसी कंट्री में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सब कंट्रीज ने किसको सपोर्ट करने की बात करी है? पेरिस एग्रीमेंट। एंड UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर ये कन्वेंशन है, ट्रीटी है एक तरह की, लगा लो आप। ठीक है, तो इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज CBDR? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सब देशों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करना है, बट डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा बड़े टारगेट्स रखें, भाई उनके पास फंडिंग है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो ज्यादा बड़े टारगेट रखें। डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लगा सकते कि आपको नेट न्यूट्रल बनना है। इंडिया का टारगेट है नेट जीरो बनना, नेट न्यूट्रल। कब तक बनना है इंडिया ने? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल, जिसको हम बोलते हैं। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आप ये टारगेट लगा दोगे कि भाई आप 2030 तक एब्जॉर्ब करो, कैसे कर लेगा ये अचीव इंडिया? नहीं कर सकता। इसीलिए कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेशनल सर्कमस्टांसेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्लीज, फुल बैकिंग फॉर COP30 मैंने आपको बताया था कहाँ हो रही है? ब्राजील, बेलम के अंदर। एंड COP33 कहाँ होएगी? क्लाइमेट चेंज वाली 2028 इंडिया में होगी COP33। जो पहले हमने पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट से कह सकते हो आप, पॉवर्टी। देन इंडिया का क्या रोल रहा ब्रिक्स समिट 2025 में? इंडिया का क्या रोल रहा? तो इंडिया, टुडे व्हेन वी विल रीड न्यूज़पेपर, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द न्यूज कवर्ड बाय दिस स्लाइड ओनली।
कि जो मैंने आज आपको ये न्यूज़ पढ़ाई है सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ के ऊपर सब मिलेगा। तो मैंने आपको इसमें डिटेल में समझा दिया, वहाँ पढ़ने के लिए आपको आसान रहेगा। तो आप देखिए इंडियाज़ लीडरशिप विजन, इंडिया क्या कह रहा है कि अब नेक्स्ट समिट कहाँ होगा ब्रिक्स का? इंडिया में होगा। तो इंडिया कहता है हम क्या करेंगे, ब्रिक्स को एक न्यू फॉर्म में, कहते हैं एक न्यू फॉर्म देंगे ब्रिक्स को। क्या न्यू फॉर्म देंगे आप देखिए, एट द 17th ब्रिक्स समिट इंडियन पीएम अनाउंस इंडियाज अपकमिंग ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर 2026। तो जो अपकमिंग है वो इंडिया के पास आ रही है, आउटलाइनिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन एंड प्रपोजिंग अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स की क्या न्यू इंटरप्रिटेशन दे दी इन्होंने, देख लीजिए फिर आप, ये है, ये न्यू इंटरप्रिटेशन है। बी से बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस, एंड आई से इनोवेशन, सी से कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इंडिया ने बोला हम ये न्यू इंटरप्रिटेशन देंगे, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसके ऊपर आज हिंदू के अंदर पूरा एक पैराग्राफ आ रखा है कि इंडियाज न्यू इंटरप्रिटेशन टू ब्रिक्स। ठीक है, इकोड इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया ने मतलब कि ब्रिक्स समिट के अंदर G20 प्रेसिडेंसी जो थीम थी हमारी, G20 समिट जब इंडिया में हुआ था तो उसमें हमारी क्या थीम थी, पीपल सेंट्रिसिटी एंड ह्यूमैनिटी, वासुदेवा कुटुंबकम हमने देखा था। तो वैसे ही थीम उन्होंने बोला कि इसी को मतलब इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया, प्लेसिंग ग्लोबल साउथ कंसर्न्स एट द कोर, बेसिक। हाँ, इंडिया स्ट्रेटेजिक गेन फ्रॉम ब्रिक्स 2025, क्या गेन हुआ इंडिया को? इंडिया emerged as a leading voice in shaping the ब्रिक्स एजेंडा, जो हम एजेंडा पढ़ के आए हैं अभी। देन एडवांसिंग थीम्स फॉर, कौन सी इंडिया किसको एडवांस कर रहा है, कौन सी थीम्स को? डी डॉलराइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की यूएनएससी को आप रिफॉर्म करो, और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनको ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। बट व्हाट इज डी डॉलराइजेशन? अवॉइड करना, उससे इम्पैक्ट क्या है? अगर डॉलर की हेजेमनी से क्या प्रॉब्लम है कंट्रीज को? नहीं, पॉलिटिक्स में तो हम मल्टीपोलर बन ही सकते हैं। इकोनॉमी वाइज आप कह सकते हैं कि सब कंट्रीज की इकोनॉमीज विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डॉलर। अगर यूएस की इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी या यूएस की इकोनॉमी मतलब इम्पैक्ट होगा तो सब कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो डी डॉलराइजेशन, ट्रेड करना है तो सब कंट्रीज किस में ट्रेड करती हैं? डॉलर में। तो डॉलर फ्लक्चुएट करेगा तो सब कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो डी डॉलराइजेशन के बारे में भी बात की गई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। De-dollarization means reducing the use of US dollar in international trade। अब ये बात हुई है और ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने धम ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर आपने यूएस का जो डॉलर है उसको आपने वो करना, मतलब अगर आपने उसको वीक करने की कोशिश की तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। 100% टैरिफ किसके ऊपर? ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, 100% टैरिफ। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट। इट मीन्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड finance, global reserves, and replacing it with other countries like Euro, Chinese yuan, Indian rupee, or even gold or digital currencies. Why is US dollar so important? US dollar is currently the dominating global currency. It is used for 80% plus of the global trade in invoicing between non-US countries. Then 60% of the global foreign exchange reserves जो हैं countries के पास वो किस में है? डॉलर में। प्राइसिंग ऑफ द ऑयल, गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज, इंटरनेशनल लोन्स एंड डेट्स, ये सब किसमें जाते हैं? डॉलर के अंदर जाते हैं। तो आप डॉलर की हेजेमनी देख रहे हो। व्हाट हैपेंड इन डी डॉलराइजेशन? कंट्रीज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर डिपेंडेंस बाय ट्रेडिंग इन देयर ओन करेंसीज। तो जैसे इंडिया और रशिया ने स्टार्ट किया था, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी ना, G7 कंट्रीज ने लगाई थी कि भाई कोई भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो ऑयल नहीं खरीदेगा और उसको स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया था रशिया को। स्विफ्ट जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, स्विफ्ट। अगर एक कंट्री कोई चीज इंपोर्ट कर रही है तो उसके अकाउंट में पैसे कैसे भेजने हैं? स्विफ्ट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, उससे भी उसको क्या कर दिया था? निकाल दिया था। बट इंडिया ने फिर कैसे डील किया था रशिया के साथ? रूबल, है ना, रूबल रशिया की और इंडिया का रुपीस, इसमें ट्रेड किया था। बट इसमें प्रॉब्लम है एक। हाँ, तो डॉलर तो ग्लोबल करेंसी है ना, ग्लोबल तो ग्लोबल करेंसी है। आपके पास डॉलर है ना, आप उस देश के पास चले जाओ कुछ लेने, वो भी दे देगा। उसको बोलो मेरे पास डॉलर है मुझे सामान दे दे, वो दे देगा। उसको बोलो मेरे पास डॉलर है सामान दे दे, हर एक देश आपको सामान दे देगा। बट अगर अब रशिया मान लो इंडिया ऑयल खरीदता है तो इंडिया रुपी देगा, इंडिया रुपी देगा। तो वो कहता है मुझे रुपी से क्या खरीदूं मैं? आपसे मैं राइस खरीद लूं, वीट खरीद लूं, ये खरीदूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो इन रुपीज का मैं क्या करूं? वो दूसरी कंट्री के पास जाए, भाई साहब मुझे ये रुपी ले लो और मुझे दे दो, वो बोलेंगे भाई साहब हमने नहीं देनी। समझ आई बात या नहीं?
सिमिलरली रूबल जो है वो भी दूसरी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। होल्डिंग मोर रिजर्व्स इन अदर कंट्रीज, तो ये सब डी डॉलराइजेशन में ही होगा। क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव्स लाइक ब्रिक्स प्लान फॉर, ब्रिक्स भी कह रही है कि हम क्या बनाएंगे, कॉमन करेंसी, या फिर हम क्या बनाएंगे, डिजिटल करेंसी। लाइक चाइना की कौन सी है, ये जो ECNY, चाइनीज युआन, ठीक है, चाइनीज युआन। नाउ रीजंस फॉर डी-डॉलराइजेशन, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू यूएस सैंक्शंस। यूएस जब जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, तो जब उसका डॉलर की जो है वो दूसरी करेंसी अगर यूज होगी तो उससे कोई यूएस की सैंक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। So it's if a country is dollar dependent, the US can easily impose economic sanctions by cutting off dollar access. Increase economic sovereignty बढ़ेगी कंट्री की. Countries want more control over their trade and currency decisions. Then amid dollar volatility reduce होगी, जो कि मैंने आपको बताया था. Then strengthening multipolar world order. Examples of de-dollarization: Russia and China trade mostly in rubles and yuan. India, Russia tried settling oil payments in rupees. तो ये हम examples देख रहे हैं. BRICS is exploring a common trading currency. ब्रिक्स फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स कौन से हैं जी बताइए इस समिट के अंदर, फाइनेंशियल इनिशिएटिव कौन से लिए हैं, सबसे पहले नोट डाउन करिए आप, ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी। तो BMG इनिशिएटिव क्या है, व्हाट इज BMG इनिशिएटिव, जो इस समिट के अंदर लिया गया है? इट वाज लॉन्च्ड बाय NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स समिट 2014 के अंदर जो हुआ था उसमें ये इंस्टीट्यूट किया था, एस्टेब्लिश किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का लेटेस्ट मेंबर अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। NDB का लेटेस्ट मेंबर, NDB बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का है, बट NDB का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, अल्जीरिया। बताइए समझ आ रहा है नहीं? अब BMG इनिशिएटिव क्या है, मल्टीलेटरल गारंटी, ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी। एंड व्हाट इज, एक ब्रिक्स पे भी है, दो है इनिशिएटिव, एक ब्रिक्स पे और एक BMG। ब्रिक्स पे क्या है, क्या ये ब्रिक्स की कॉमन करेंसी है? नहीं, ये ब्रिक्स की कॉमन करेंसी नहीं है। ब्रिक्स पे इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट वुड अलाउ ब्रिक्स कंट्रीज टू ट्रेड विद ईच अदर इन देयर नेशनल करेंसीज। तो मतलब एक तरह का अब डिजिटली वो ट्रेड कर सकते हैं अपनी ही करेंसीज में। पहले फिजिकल ट्रेड होता था, रुपी वहां गया, रूबल वहां से आया। अब डिजिटल, जैसे UPI हम यूज करते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, डिजिटल ट्रांसफर। वैसे ही अब उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, जैसे वो भारत पे है वैसे ही ये क्या बन गया है, ब्रिक्स पे। BRICS Pay is a proposed digital payment system that would allow BRIC countries to trade in each other national currencies, avoid using the US dollar in cross-border transactions. But point ये है कि ये सिर्फ BRICS countries के बीच में ही हो पाएगा. Make transaction faster, cheaper, and more secure. It is like UPI and PayPal. Goals of BRICS Pay, इसका goal क्या है? To simplify trade between BRICS members, promote de-dollarization, strengthen financial sovereignty and interdependence. Now, what is BMG? BMG, BRICS Multilateral Guarantee, is a risk-sharing mechanism launched by NDB. तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, किसको अट्रैक्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन की एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ मल्टीलेटरल गारंटी का, इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ जी, हाँ प्राइवेट सेक्टर को ही मतलब इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी है। इसमें क्या होगा, सपोज इफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन एनी ब्रिक कंट्री, सपोज साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट करना है, तो साउथ अफ्रीका में या किसी भी ब्रिक कंट्री में इन्वेस्ट करना है, बट दैट इन्वेस्टर इज डाउटफुल कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं सारी वेस्ट ही ना हो जाए। कैसे, मान लो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट मेरी सारी क्या हो जाए, यूजलेस हो जाए, तो मुझे तो रिटर्न कुछ नहीं आएगी, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है बूस्ट नहीं होगी, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे वो, ये NDB कहता है, NDB कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आप इन्वेस्ट करो और मैं 50% गारंटी दे रहा हूँ, आपके प्रोजेक्ट को कुछ भी हो गया 50% मेरे से ले जाना पैसे। समझ में आई, 50% मेरे से ले जाना पैसे, ये वो है BMG। आप पढ़िए जरा, how it works. When private investor hesitate to fund big projects due to risk of loss or political instability, the BMG gives them a financial guarantee. This reduces their risk and encourage more investment in the BRICS countries. Suppose a private company wants to invest in a solar power project in South Africa, but that company is worried about the risk like political instability, payment delays from the government, legal or regulatory uncertainty. तो उस केस में फिर वो इन्वेस्टमेंट करने से हट जाएगी ना पीछे। बट ये फाइनेंशियल गारंटी क्या देंगे कि भाई आप
40 या 60% इन्वेस्टमेंट हम आपको आपकी वापस करेंगे अगर आपको नहीं मिलते हैं वहां से, रिकवर नहीं होती आपकी. दिस मीन्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एग्जांपल द प्रोजेक्ट फेल्स, द गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स, द बीएमजी विल पे बैक द इन्वेस्टर फॉर द गारंटीड पोर्शन. एनडीबी देगा, है ना. और मेंबर कंट्रीज नहीं, कोई भी इन्वेस्टर अगर ब्रिक्स कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ब्रिक्स के मेंबर्स भी ऑब्वियसली एनडीबी के तो मेंबर्स हैं ही हैं. इसका नेम है ब्रिक्स, ये गारंटी जो है ना, बीएमजी है ना इसका नाम. तो ब्रिक्स कंट्री शेयर करेंगी वो. कैन गारंटी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेकिंग द प्रोजेक्ट सेफर एंड मोर अट्रैक्टिव. Example, if an investor puts in $100 million and BMG guarantees 50%, then even if the project fails, the investor will recover $50 million through the guarantee. This reduces the investor risk, making more willing to the project. Then US opposition to BRICS क्या है? BRICS as a growing power bloc. So with the addition of new members, BRICS now represent 11 members हैं, तो 45% of the population यहाँ रहती है in 11 countries में, and it contributes 35% to the global GDP. BRICS concerns over BRICS currency alternatives. Despite early speculation, BRICS ने clarify करा है that it did not intend to replace the dollar, but rather aims to offer viable alternative settlement system to improve the market efficiency. तो उन्होंने बोला हम कोई डॉलर को रिप्लेस करने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं. ट्रंप ने क्या थ्रेट दे दिया है? टैरिफ थ्रेट. तो उन्होंने बोला कि अगर आप एंटी अमेरिकन पॉलिसीज लेके आओगे तो हम 10% टैरिफ लगाएंगे, कोई भी कंट्री अगर उस पॉलिसी के साथ अलाइन होती है. और ये स्ट्रॉन्गर वार्निंग क्या है कि अगर आप दे मूव टू रिड्यूस डॉलर यूसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, देन 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स. 100% टैरिफ लगाऊंगा मैं. टैरिफ बहुत बड़ा वेपन है इसके पास. देन इंडियाज पोजीशन ऑन डी डॉलराइजेशन. तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं इंडिया डज नॉट टारगेट द डॉलर बट एक्सप्लोर्स अल्टरनेटिव ट्रेड सेटलमेंट्स. और इंडिया ने युआन के रोल को थोड़ा सा वो किया है कि उसको अपोज किया है. युआन बिकेम द, देखिए आप, मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ द बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट्स. इंडिया रेजिस्ट करती है, इंडिया रिफ्यूज टू यूज द युआन फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स. तो रशिया कहता है कि तुम मुझे रुपी की जगह क्या दे दो? युआन दे दो. और इंडिया कहता है मैं तो युआन नहीं दूंगा, मैं तो क्या दूंगा? रुपी दूंगा. ठीक है. इंडिकेटिंग रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट चाइनीज मॉनेटरी हेजिमनी. इंडिया कहता है हम नहीं युआन देंगे. एफटीए जो यूएस के साथ हुआ था, सब कुछ कर सकते हैं वो, बिल्कुल कर सकते हैं. द ग्रुपिंग हैज बिकम 11 नेशन बॉडी नाउ. तो कौन कौन सी कंट्रीज नहीं आई हैं बताइए? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया. तो ये आप देखोगे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. तो ऑलमोस्ट 30% कुछ हमने उस दिन पढ़ा था कितना ऑयल जो है इन्हीं कंट्रीज से आता है. आप देख सकते हैं इंडोनेशिया बिकेम द ऑफिशियली ज्वाइंट 11th मेंबर, एंड साउथ अफ्रीका इन 2010, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड सऊदी अरेबिया ज्वाइंट इन 2024. क्यों? देखो ब्रिक्स के अंदर कौन है? ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना. रशिया और चाइना. तो सबसे ज्यादा ब्रिक्स के अंदर जो करेंसी ट्रेड हो रही है रशिया के साथ, बेसिकली 90% ट्रेड तो युआन के अंदर हो रहा है. तो वो कह रहे थे कि भाई, इंडिया को भी कह रहे हैं कि अगर आपको रशिया से ऑयल चाहिए या कुछ चाहिए तो हमें क्या दे दो आप? युआन दे दो, चाइनीज युआन. तो इंडिया कहता हम क्यों युआन को यूज करें, हम क्या यूज करेंगे? युआन कौन सी है? एक ग्लोबल करेंसी है. तो आप उसको उसकी हेजिमनी क्रिएट करना चाहते हो, इंडिया उसको रेजिस्ट करता है. हिस्ट्री देख लो आप, ब्रिक्स फॉर्मेशन कितनी बार कर चुके हैं बताओ. सबसे पहले ये एक्रोनिम ब्रिक्स किसने दिया था बताइए? ये ब्रिक्स है तो ये ऐसा भी तो हो सकता था, RIBCS, ऐसे भी तो हो सकता था. बट एक्रोनिम बनाया किसी ने, ब्रिक्स. तो किसने बनाया? वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम क्या है? जिम ओ नील. इसने बनाया था. एंड एक्रोनिम ब्रिक वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2001 बाय गोल्ड सैक्स इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर. वहां पर ये यूज किया गया था. आफ्टर सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स, फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन, कहां पर हुआ था बताइए? इन रशिया ऑन जून 16, 2009. देन आप, इट वाज एग्री टू एक्सपेंड ब्रिक्स इनटू, ब्रिक को ब्रिक्स में बनाया गया 2010 में. किसको ऐड किया गया? साउथ अफ्रीका को. कौन सा समिट था वो? तो फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था बताना जरा? 2009. और थर्ड समिट आप देख सकते हैं 2011 में.
ये कहाँ पर हुआ है आपका? साउथ अफ्रीका अटेंडेड द थर्ड ब्रिक्स समिट इन कहाँ पर? यहाँ पर सानिया जो भी है ये जहाँ पर हुआ है वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है, इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। ब्रिक्स लीडर्स की मीटिंग नहीं हुई थी, किसकी हुई थी? फॉरेन मिनिस्टर्स की। देन एनडीबी कब आया फिर? ये 2011 में साउथ अफ्रीका ऐड किया है, तो एनडीबी कब आया? जो अभी आपने पढ़ा बीएमजी पढ़ा ना आपने, तो ये एनडीबी आया 2014 में। 2014 में ब्रिक्स नेशन एस्टैब्लिश द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इनिशियल कैपिटल आपने नहीं याद करनी तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, तो BRICS leaders have left the door open to future enlargement as dozens more countries voiced interest in joining a grouping. और भी countries कह रही हैं हमें BRICS को ज्वाइन करना है। Around 40 countries have shown interest in the joining BRICS, out of which 23 formally applied for the membership. In August 2020, top BRICS leaders at the grouping summit in Johannesburg approved proposal to admit. तो ये भी important हो सकता है क्योंकि पहले 5 थी, बाद में 6 ऐड होकर टोटल 11 बन गई। तो ये प्रपोजल कहाँ कौन से समिट में ऐड किया इन्होंने? ये जनवरी 1 2024। ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग। ठीक है, बट अर्जेंटीना आप याद रखना, इसने अप्लाई तो किया था, बाद में इसने क्या कर लिया था? विड्रॉ विड्रॉ कर लिया था। जेवियर मिली जो है वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कि मुझे इसका मेंबर नहीं बनना। अब आप देखिए ईरान, सऊदी अरेबिया यूएई इसके मेंबर बन गए, तो 44% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल जो है इन्हीं कंट्री से आता है। अब ये भी नोट डाउन कर लो आप, एनडीबी 2014 में आया था, बट वो जो है कहाँ हुआ था? ये फोर्टलेजा। लीडर साइन द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द एनडीबी फोर्टलेजा में। देन ब्राजील अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ, अब ब्राजील, ये ब्राजील में ही हो रहा है हमारा 2025 में, और ये हो रहा है 17th है ना? 16th कहाँ हुआ था? तो तीनों याद रख लो आप। 16th हुआ था आपका काजान रशिया में, काजान रशिया में। 17th हुआ ब्राजील में, और 15th जब ये 6 कंट्रीज को ऐड करने का प्रपोजल आया था, ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। अब 18th कहाँ होने वाला है? तो आपको प्रेजेंट ब्राजील, फ्यूचर इंडिया, और उससे एक पीछे कहाँ हुआ था? 16th। 17 तो अब हो रहा है ना, तो 16th कहाँ हुआ है? रशिया में, काजान में। तो याद रखना है, प्रीवियस रशिया, काजान, प्रेजेंट ब्राजील, एंड नेक्स्ट इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक। तो ये कौन सा बैंक एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया ने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन से मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? उनका नेम क्या है? जितेंद्र जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इन न्यू दिल्ली। तो ये बायो बैंक जो एस्टेब्लिश किया है, इसका मेन पर्पस क्या होने वाला है? सो इट इज अ फैसिलिटी which is building India's own longitudinal health database। इंडिया के लोगों का हेल्थ डेटाबेस इस बायो बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है, द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट अंडर विच बायो बैंक हैज बीन लॉन्च इज डिजाइन टू बी अ लॉन्ग टर्म डेटा रिच स्टडी ट्रैकिंग द हेल्थ ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर सेवरल ईयर्स। इट विल हेल्प साइंटिस्ट अनकवर डिजीज पैटर्न्स। इंडिया में जो लोग हैं उनको किस तरह की डिजीज होती है, उनका जो डेटा होगा, हेल्थ डेटा, उससे वो रिसर्च करेंगे और देखेंगे। ठीक है, डिजीज पैटर्न्स, जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस की इंडियन लोगों के जीन्स एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सेज टू द थेरेपीज, ये सब हेल्प साइंटिस्ट को मिलेगी इस डेटा से। तो आपको याद रखना है कि नेशनल बायो बैंक कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसका मेन पर्पस क्या है वो भी आपको देखना है। ठीक है, आप देखिए, अच्छा ये भी आप नोट डाउन करिए कि कोहॉर्ट स्टडी का मतलब होता है, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप स्टडी। कोहॉर्ट का क्या मतलब होता है? ग्रुप स्टडी। तो नेशन वाइड ग्रुप स्टडी कलेक्टिंग कितने कौन कौन से सैंपल लेंगे ये लोगों के? जीनोमिक्स, लाइफस्टाइल, क्लिनिकल डेटा। ये 3 तरह के सैंपल्स लेंगे। क्लिनिकल डेटा हो गया आपका डीएनए, ब्लड सैंपल। जीनोमिक लाइफस्टाइल भी देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो, सब ये सब फैक्टर्स जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। कितने लोगों का बताओ? 10,000 इंडिविजुअल अक्रॉस इंडिया। ये इंस्पिरेशन हमने बायोबैंक की कहां से ली है बताइए? यूके बायोबैंक मॉडल। इससे फायदा क्या होगा फिर? इट विल इंप्रूव
early diagnosis, improve the therapeutic targeting and bolster the fight of therapeutic होता है मतलब पेन रिड्यूस करने के लिए, पेन कम हो जाती है जैसे डायबिटीज, कैंसर, इन जैसी डिजीजेस को डील करने के लिए। बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या है, व्हाट इज फिनोम नेशनल बायोबैंक स्टोरेज रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च इन न्यू दिल्ली that will collect store data, analyze biological samples like blood, saliva, DNA. It is a long-term study, health genetics of 10,000 people. It will help scientists understand how genes, lifestyle, and environment together influence the health and disease. Data collection. What kind of data will be collected? Three type of data. कौन सा बताओ जरा? Genomic data, DNA and genes. Lifestyle data, diet, exercise, smoking, stress. Medical history, past disease and treatments. Environmental exposure like ये इस तरह के डेटा से वो कलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? आइडेंटिफाई डिजीज पैटर्न्स इन इंडियंस की इंडियंस को कौन सी ज्यादा डिजीजेस होती हैं, रिवील हाउ इंडियन जीन्स रिएक्ट टू द मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स, हेल्प इन अर्लियर डायग्नोसिस एंड इंप्रूव पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। जापान कोस्ट गार्ड शिप, तो हमने कल भी पढ़ा था एक क्वाड का, है ना, वो नहीं वो देखिए तो पढ़ा था क्वाड का इनिशिएटिव, सी ऑब्जर्वर मिशन, वो भी तो कोस्ट गार्ड्स का ही था, इंडियन कोस्ट गार्ड, जापानीज कोस्ट गार्ड, सबका ही था वो भी। तो फिर ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक जो एक्सरसाइज का नेम है वो आपको याद होना चाहिए। ये इस शिप का जो कोस्ट गार्ड शिप है, सुकुशिमा विजिट्स चेन्नई। सुकुशिमा जो है ये जापान की कोस्टल शिप है जो कि चेन्नई इंडिया में आई है। और अब ये क्यों आई है यहाँ पर? इट अराइव्ड एट चेन्नई पोर्ट ऑन जुलाई 7 एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल ओशियन वॉयज ट्रेनिंग। तो भाई ये ग्लोबल वॉयज पे है जिसके तहत ये इंडिया में पहुंची है। दिस विजिट हाईलाइट्स द डीप एंड्योरिंग बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में बॉन्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द वाइटल इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि कल हमने किया था। ड्यूरिंग द स्टे एट चेन्नई इन द ensuing week, Japan Coast Guard ship Fukushima will participate in number of activities including official calls, reciprocal visits। तो ये सारा कुछ करने वाले हैं। Culminating in a joint sea exercise, ये नोट डाउन करो, joint sea exercise कौन सी होने वाली है अब? जामाता, जामाता which means see you later। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, बस जय माता कर देते वो ज्यादा अच्छा हो जाता। चलिए आगे देखिए। अदर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है हमारी इंडिया और जापान की, बताइए? शिन्यू, मैत्री, एयर एक्सरसाइज, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिमेक्स जापान, जे आई इंडिया, एम मैरीटाइम, ई एक्स एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एम आ गया तो मैरीटाइम नेवल है। शिन्यू मैत्री एयर, तो ये तो एयर एक्सरसाइज है। वीर गार्जियन एयर एक्सरसाइज, धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो है इसमें हमारी जापान के साथ होती है। बट अब जा माता जो है ये नहीं वाली है, सी यू लेटर। ठीक है, तो अब मैं आज जो अ, जब हम ये खत्म करेंगे सेशन तो मैं आपको बोलूंगा जा माता, सी यू लेटर ना। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया अर्जेंटीना बायलेटरल रिलेशंस। ये क्यों आ गया अर्जेंटीना? क्योंकि मोदी जी टूर पे हैं 5 days, है ना, 5 nations विजिट पे, तो जिसके चलते चलते ये जो है, आप देखिए इंडिया अर्जेंटीना एग्री टू डाइवर्सिफाई बायलेटरल ट्रेड बास्केट। मतलब क्या? ट्रेड बास्केट है ना, आप हमारे देश में क्या बेचते हो, हम आपके देश में क्या बेचते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करो, मतलब बड़ी ट्रेड बास्केट लेके आओ, और भी चीजें हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। इंडिया अर्जेंटीना एग्री टू डाइवर्सिफाई टू वे ट्रेड एंड रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज कोऑपरेशन इन कौन से सेक्टर्स में? डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद अर्जेंटीना। अच्छा, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है अर्जेंटीना के? अभी आप पढ़ के आए थे कि ब्रिक्स के अंदर वो प्रेसिडेंट जेवियर मिली, वहां पर भी ये नेम आया था और यहाँ पर भी अब ये नेम आया है, तो अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नेम। तो मोदी जी ने अर्जेंटीना में 2018 में विजिट किया था G20 समिट अटेंड करने के लिए। बट ये बायलेटरल विजिट मतलब 1-to-1 विजिट जो है, ये कितनी देर बाद हो रही है? आफ्टर गैप ऑफ 57 years। तो G20 के लिए तो गए थे बट बायलेटरल के लिए ये 57 years के बाद हो रही है। ना मोदी जी को क्या दिया इन्होंने वहां जाके?
क्या क्या दिया उनको? क्या उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? नहीं, गाना का और ट्रिनिडाड एंड टबैगो का तो। बट यहाँ पर एक मिला है इनको, क्या मिला है? सिटी ऑफ द ब्यूनस एयर्स। ठीक है, ब्यूनस एयर्स। मोदी जी ऑल्सो रिसीव द की ऑफ द, क्या मिला इनको? की ऑफ द सिटी। की ऑफ द सिटी बेसिकली ये अवार्ड है एक तरह का। की ऑफ द सिटी अवार्ड का नेम है। और कौन सी सिटी का है? ब्यूनस एयर्स, फ्रॉम चीफ ऑफ द सिटी। तो जैसे मेयर होता है सिटी का, तो वैसे मेयर साहब ने क्या दिया है मोदी जी को? की ऑफ द सिटी। की ऑफ द सिटी क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक ऑनर। ऑनर कह लो, अवार्ड नहीं, ऑनर है। गिवन बाय अ सिटी टू अ distinguished guest, often a foreign head of a state or prominent leader, to mark what? Respect, friendship, and goodwill. It is like city saying, "You are a welcome and trusted friend. Our city is open to you." Specifically, it is of for Buenos Aires. The chief of the city government, like mayor, जो है वो award देता है. It is one of the highest civilian honors the city can bestow, not the country. It is the city which can bestow, and it reflects appreciation for the guest role in strengthening bilateral relations. इंडिया अर्जेंटीना कोऑपरेशन, तो दोनों कंट्रीज ने बोला कि हम अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स में? क्रिटिकल मिनरल्स, ऑयल गैस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये सब में हम अपनी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज में भी हम अपनी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, बट फिर ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक एफटीए का जिक्र आया, पीटीए का सॉरी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम क्या है? इंडिया मर्कॉसर, पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो आपको मैंने एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत पढ़ाए हैं, एफटीए, पीटीए, सीपा, सीका, बहुत सारे करवाए मैंने आपको। तो इंडिया का मर्कर्सर के साथ पीटीए है। और मर्कर्सर क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, पीटीए इज, हाँ जी, हाँ, ग्रुप ऑफ कंट्री हैं। इंडिया ने बोला है वी एम एट एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द मर्कर्सर ब्लॉक। मर्कर्सर ब्लॉक के साथ हम अपना इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड मर्कर्सर के अंदर देखो कितनी कंट्रीज हैं, इंक्लूड्स अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया एंड वेनेजुला। वेनेजुला अभी सस्पेंडेड है, मर्कर्सर ग्रुप से क्या है, ये सस्पेंडेड है, क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शन हुए थे और वो बोला रिग्ड इलेक्शंस हैं। ठीक है, उस बंदे ने आर्बिट्रेरी इलेक्शन जो है जीत लिए, जो ऑपोजिशन मेंबर था। उसने बोला कि जीता तो मैं हूँ, अब वोट काउंटिंग करो। रादर उसको अरेस्ट करने लगे, वो बेचारा भागकर दूसरी कंट्री में गया, बोलीविया में गया। आई थिंक मुझे नेम तो नहीं याद आ रहा उसका अभी। मर्कर्सर ग्रुपिंग को पढ़िए आप। मर्सर, हाँ कर लीजिए, मर्कर्सर अब न्यूज में है तो आप पढ़ इसका नाम याद कर लीजिए। और इसमें आप देखिए, मर्कसर फॉर इट्स स्पेनिश इनिशियल्स इज अ साउथ अमेरिकन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मर्कसर क्या है? एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, बट कौन सी कंट्रीज की? साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की है ये। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? ये रीजनल ग्रुपिंग है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की। एम इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। When it was created? It was created in 1991 by signing the treaty, कौन सी है? ट्रीटी ऑफ सॉन्शियन। ठीक है, then facilitating the free movement of goods and services, capital and people among the member countries। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की। इसमें हम क्या नोट डाउन करेंगे? मेंबर कंट्रीज नोट डाउन करेंगे, और ये याद रखेंगे कि वेनेजुला हैज बीन सस्पेंडेड सिंस December 1, 2016। मर्कसर आल्सो काउंट्स चिले, चिली, कोलंबिया, इक्वेडर, ये सब एसोसिएट मेंबर्स हैं। अच्छा, हेडक्वार्टर नोट डाउन करो। हेडक्वार्टर कहाँ है? मोंटीवीडियो, उरुग्वे। और इसकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज भी नोट डाउन करिए, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। एक हेडक्वार्टर नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो। शैल आई मूव हेड? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ड्यूरैंड कप टूर्नामेंट। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट। प्रेसिडेंट मुर्मू अनवील्स ट्रॉफीज ऑफ ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? कौन सी बॉल? फुटबॉल। फुटबॉल के साथ कनेक्टेड है ड्यूरेंट कप। प्रेसिडेंट मुर्मू अनवील्ड ट्रॉफीज ऑफ ड्यूरेंट कप ऑर्गेनाइज्ड बाय। कप ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इंडियन आर्मी। ठीक है। द इवेंट वाज, ये जो ट्रॉफीज अनवील की हैं, इस इवेंट को किसने किसने अटेंड किया है? एक तो आपके आर्मी के, क्या नाम है उनका? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है प्रेजेंट? अनिल चौहान। सीडीएस कौन होते हैं? तो आपके थ्री फोर्सेस के जो हेड होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो होते ही होते हैं, बट उनके भी ऊपर एक चीफ होते हैं, उनको बोलते हैं हम सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो मतलब तीनों को, किसी को भी कमांड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तीनों के साथ। समझ में आया? तो एक यूनिफाइड कमांड के लिए एक ऊपर भी है, कौन है? एक यूनिफाइड कमांड के लिए अनिल चौहान। जो फर्स्ट थे वो विपिन रावत थे। कौन थे वो? ये सेकंड है। फर्स्ट कौन थे? विपिन रावत। उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, जिसके बाद अनिल चौहान जी को, उनको बनाया गया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और किसने अटेंड किया ये इवेंट? चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का नेम क्या है बताइए? इंडियन आर्मी के हेड का नेम क्या है बताइए? उपेंद्र द्विवेदी। एंड एयरफोर्स चीफ के नेम उनका बताइए? अमरप्रीत सिंह। इनका तो आपने, जब ये पहलगाम में जब हमने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें आपने इनका नेम काफी सुना होगा, अमरप्रीत सिंह। एंड नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, त्रिपाठी जी। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी इसके अंदर? 24 टीम्स। एंड इसमें ये कौन सा एडिशन है? 134। बहुत पुराना ये कप है ड्यूरेंट, आई थिंक 1888 से चला आ रहा है। देखेंगे अभी हम। द टूर्नामेंट विल बी प्लेड अक्रॉस कितनी? 5 स्टेट्स में ये करवाया जाएगा। 24 टीम्स विल बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। एंड वर्ल्ड्स, क्या है देखो यहाँ पर, वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। किसके रिगार्डिंग? फुटबॉल के रिगार्डिंग। एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। विल बी प्लेड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, मणिपुर, मेघालय एंड असम। आप देख लो नॉर्थ ईस्ट वाली है, क्योंकि वहां पर फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है। ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन, देखिए, 1888। इट इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का। इट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर, क्या नेम था उनका? सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, हु वाज देन द फॉरेन सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ इंडिया। इनॉग्रल एडिशन टुक प्लेस कहां पर हुआ था? शिमला। व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ एज अ, पहले ये आर्मी कप था, सिर्फ आर्मी की टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, बट लेटर ऑन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है पार्टिसिपेट करते थे, बट सून इट ओपन टू द इंक्लूड सिविलियन फुटबॉल क्लब्स आल्सो। तो अब सिविलियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आप 3 कप हैं, जो उनका नेम नोट डाउन करिए जरा आप। 3, सबसे पहले ड्यूरेंट कप है। ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट कप है सबसे पहले, जो कि सबसे मेन ट्रॉफी है। ठीक है, ड्यूरेंट कप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ड्यूरेंट कप, दिस इज अ मेन ट्रॉफी, बट दिस इज अ रोलिंग ट्रॉफी। क्या है ये? रोलिंग। रोलिंग ट्रॉफी का मतलब होता है कि जो विनर टीम है, वो अगले एडिशन से पहले पहले इस ट्रॉफी को रिटर्न करेगा, वापस करनी है, रिटर्न कर देनी है। ठीक है, अगले एडिशन से पहले पहले इसको क्या करना है? रिटर्न करना है। ये रोलिंग ट्रॉफी है। ठीक है। एंड ये जो है सबसे पहले अवार्ड की गई थी 1888 में। एंड देन सेकंड इज शिमला ट्रॉफी। शिमला ट्रॉफी, 3 ट्रॉफी अनवील किया ना मुर्मू जी ने, तो नंबर 2 इज शिमला। ये पता क्यों? क्योंकि फर्स्ट कहाँ हुआ था ये बताओ? फर्स्ट एडिशन शिमला में। तो शिमला के रेजिडेंट्स, शिमला के लोग देते हैं इसको, किसको? विनिंग टीम को। शिमला के रेजिडेंट्स, ये भी रोलिंग ट्रॉफी होती है, ये भी अगले एडिशन से पहले पहले क्या करना है? विनर को वापस कर देनी है। तो ये है शिमला ट्रॉफी। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1904 में। शिमला ट्रॉफी कब आई थी? शिमला ट्रॉफी ये आई थी 1904 में। ये रेजिडेंट्स ऑफ शिमला देते हैं विनिंग टीम को। एंड लास्ट इज प्रेसिडेंट्स कप। ठीक है, थर्ड ट्रॉफी कौन सी है? प्रेसिडेंट्स कप। प्रेसिडेंट कप ये परमानेंट होती है, ये रोलिंग ट्रॉफी नहीं होती है। दोनों रोलिंग है, बट ये थर्ड वाली जो है परमानेंट है। ये विनर अपने पास रखता है एज अ मोमेंटो कि भाई हम जीते थे। समझ में आई बात या नहीं?
ये 1956 में दी गई थी सबसे पहले, 1956, और दी थी इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने दी थी सबसे पहले, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल इन टुडेज सेशन, एंड कीप लर्निंग, एंड टिल देन जय माता। ठीक है, ओके।